So, hello everyone. India International Film Festival of Boston and BDC TV welcomes the जयंती फिल्म्स. अभी आई है हमारी, बहुत 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 खूबसूरत फिल्म है. अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो रिव्यूज आ रहे हैं, जो पोस्टर्स आ रहे हैं, जो उसके बारे में मैं सुन रही हूँ, उसके हिसाब से इट लुक्स प्रोमिसिंग. So we are privileged to have the cast and crew, director, producer, and main lead, Rutu and Hemant, who is bringing this film to Boston. Ant is here, who is bringing this film to Boston under the banner of Boston Study Group. So all of you most welcome at BDC TV platform, and thank you so much for giving me time. Shailesh, I would like to start with you. What inspired you to make this film? It was in 2016 when I thought I am ready to make a film, a full-length film, and I already had 4 or 5 stories, 4 or 5 scripts ready with me, and my favorite genre is thriller. So I like writing thrillers and directing. But at that time in 2016, everywhere there was the atmosphere of Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary. We were celebrating 125th anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, and everywhere all the organizations, the government departments, they all were preparing for that grand celebration. And there I got the idea that in India we celebrate the birth anniversaries of our great forefathers with a very great pomp and show. And so there I got the idea, the person, the activist who is behind that event, who takes care of all the logistics, who works there day and night, and who makes sure that the event is a success. What is about that character? Who is he? What is his family background? What is his educational background? And what is his ideology? How much he knows about the person whose birth anniversary he is celebrating. Okay. And there I got this character, Santosh. And there I thought, yes, people might love to watch this story. And from there it started. Very interesting. Because अच्छा, अभी अगर हम ये कहें कि जो मैं सुन रही हूँ कि जो संत्या का कैरेक्टर है वो एक गून है, एक बड़ा गुंडा है, लेकिन इवेंचुअली ही चेंज हिज माइंड एंड हिज हार्ट और ही बिकम अ मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल बॉय. ये चेंज दिखाना क्यों जरूरी था? ये चेंज दिखाना इसलिए जरूरी था बिकॉज मैंने ऐसे कई कैरेक्टर कई लोग देखे हैं एट द पीक ऑफ देयर यूथ, जो जिनको देख के मुझे डर लगता था. मतलब आई पर्सनली मुझे डर लगता था कि कभी गलती से अगर ऐसे किसी इंसान से मैं उलझ जाऊं तो पता नहीं वो क्या करेगा, है ना. बिकॉज क्योंकि वो किसी नहीं डरते हैं, उनको लॉ से डर नहीं लगता, उन्हें किसी और से डर नहीं लगता. तो इस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने देखे हैं. तो मुझे लगता था कि such people have no use, they are no good for the society. मतलब वो सिर्फ किसी को तकलीफ दे सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते. तो ऐसे लोगों का लाइफ कितना मीनिंगफुल है, और अगर नहीं है तो फिर इन लोगों को इस तरीके से कैसे बनाया जा सकता है कि सोसाइटी को इनका भी कुछ फायदा हो, इनके भी इस दुनिया में आने का कुछ फायदा हो. एंड फ्रॉम देयर आई गॉट दैट थ्रेड कि ये बंदा यहाँ से ट्रैवल करके अगर यहाँ तक आए तो शायद कुछ अच्छा हो. No, it is very important because these days we are experiencing every single day that if he or she became join some group or became goons, he or she remain the goons. वो वहां चेंज या अंडरस्टैंडिंग वाली चीज आ ही नहीं रही है.
और बहुत सारे लोग सोच भी नहीं रहे हैं इसके बारे में, पर दिस इज आई थिंक इज अ गुड टर्न कि हम उनके अंदर कुछ एक ऐसी चेतना जगा सकें जो वो अच्छाई की तरफ जाएं, और वो हमारी आज की नीड है, नॉट एज एन इंडियन, नॉट एज एन जो कुछ पॉलिटिकली हो रहा है, बट एज एन ग्लोबल सिटीजन इट इज इम्पोर्टेंट Right. to have we have to change our mind, our soul, our hearts. पर thank you अमोल, as a co-producer आप कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए? तो रजिया जी, हम so I'm just one of the, as you said, the co-producer. I'm just one of the group of producers. We are around 45 set of people who are behind Jayanti, who have a strong faith in the message that we are carrying through Jayanti. And ये शैले जी, हम और शैले जी इसके पहले भी एक सीरियल, एक प्ले कर चुके हैं. That play was known as Masiha. And we have had a very good time, working with each other, understanding each other's strengths and our liking and our objective. तो काफी सारी चीजें इसमें अलाइन थी. And the story which Shailesh ji has written, when he narrated the story to us, so it took no time for us to to agree on it, and we just started this project. And as I said, each one of us who are behind this project, they are out there to do whatever it takes to convey the message, what we want to convey through Jayanti to every person in world, actually. Very nice. Yeah, this is how. Yeah. Wonderful. ऋतु, जब आपको ये फिल्म ऑफर हो रही थी, तब आपका क्या फीलिंग थी आपको कि ये फिल्म ऑफर हो रही है, किस तरह की बनेगी और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा एट लार्ज? जब मुझे ये, मैं हर बार ये किस्सा बताता हूँ कि हम मुंबई में मिले थे, सर ने हमें जब फर्स्ट नरेशन दिया था, तब ऐसा हुआ कि सर ने जब मुझे स्टोरी बताई तो आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्टोरी है ये नीड ऑफ द आवर है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लोगों तक जानी चाहिए. और मैंने उन्हें कहा था कि इस प्रोजेक्ट के किसी भी लेवल पे मैं इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हूँ. उसके बाद उन्होंने बोला कि वी आर कंसिडरिंग यू फॉर संता, संतोष, व्हाटएवर इट मे बी. तो इट वाज लाइक दैट. तो वो कथा और वो जो स्टोरी है वो इतनी मुझे लगती थी कि ये बतानी चाहिए लोगों तक. और रही बात इम्पैक्ट का, तो ये तो मुझे पता था कि ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि लोग देख के कुछ तो घर ले जाएंगे, महसूस करेंगे. तो इसीलिए वही एक कन्विंसिंग पावर था और वो एक कॉन्फिडेंस था कि ये जब भी लोगों तक पहुंचेगी वो जरूर लोग कुछ ना कुछ वहां से कुछ अच्छा ही लेके जाएंगे. ऑसम, ऑसम. हेमंत, आपको क्यों लगा कि ये फिल्म बॉस्टन आनी चाहिए? ये हमारे जब जयंती मूवी, मतलब मैं भी नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, तो आगे शैलेश जी एंड सब ये नागपुर में प्रमोट कर रहे थे, तब मेरे माता पिता ने मुझे जयंती मूवी के बारे में चीजें बताई थी. एंड वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने भी गए थे. एंड तब मुझे मेरी माँ ने पिक्चर खत्म होते बराबर फोन किया कि आप लोगों ने भी इस मूवी को योगदान देना चाहिए अमेरिका में भी. और हमारी कम्युनिटी के इधर भी लाइक न्यूयॉर्क में अलग अलग अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन है, AIM है, आना है मिशिगन में, तो उन्होंने भी स्क्रीनिंग चालू किया. देन हमें भी लगा कि लाइक मूवी का रिव्यू बहुत अच्छा था. एंड बिकॉज जैसे हम भी यहाँ पे अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार यहाँ पे प्रज्वलित करते हैं, तो हमने भी सोचा कि ये एक अच्छा योगदान होगा जिससे हम मीडिया के थ्रू बाकी नॉन अम्बेडकर या अलग ग्लोबल लाइक अमेरिकन सिटीजन्स हियर वहां पे भी पहुंच सकते हैं, लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक कॉज दे सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग यूनिवर्सिटी हाल है, अभी आपने सुना होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी
कास्ट एज ए डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अभी इंक्लूड किया है रिसेंटली 2 दिन पहले। ब्रांडेस यूनिवर्सिटी ने 4 साल पहले किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे like media ke through, this is like a good medium which has a good impact on the people. So we thought that it's a good thing to screen this movie, and it aligns with our aim to propagate Dr. Babasaheb Ambedkar thoughts like Mahatma Phule ji, Savitri Bai, and Shivaji Maharaj. So that's why with the Boston Study Group we have a very small team here, only 10 to 12 families, but we took up this. Amol ji, Shailesh ji, they help us in the technicalities, and no, I'm here. I have a tech team. I will give you. Don't worry about that. Yeah, so we're gonna screen this movie on December 12th, and we are very glad that we got a very good response from the local people here, not just Ambedkarite, but the diverse people are very enthusiastic to see this movie on December 12th. I'm looking forward to it. Thank you. Absolutely, me too, because I wish I would have seen this before. आप लोगों से बात करने से, लेकिन it's okay. I'll be there for you, and if you need any help for anything, okay, because in IIFB or BDC we have technical team. We have 35 people in my team of IIFB and BDC. So we would love to help in any way we can. श्लेष जी, मैं आपके पास फिर आना चाहूंगी कि हमारी फिल्मों का, बिल्कुल फिल्म्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम to impress or convey the message. आपको लगता है कि जो हमारी फिल्में अभी तक बनी हैं उन्होंने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है कम्युनिटीज पर, और मेकिंग देयर माइंड्स इन सच वे, या डाल सकते हैं, व्हाटएवर यू फील? ये तो ऑब्वियसली, मतलब वो अगर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है तो बुरा भी डाल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द मेकर, या जो वो मैसेज लेके जा रहे हैं तो वो क्या मैसेज लेके जा रहे हैं। यस, मतलब कुछ कंटेंट तो अभी भी बनता है कि जो एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर रहा है या दूरियां बढ़ा रहा है। एंड विद जयंती वी हैव ट्राइड टू शॉर्टन दैट गैप, कि हमने यही जयंती में कोशिश की है कि कास्ट और रिलीजन के ऊपर आप सोचना शुरू करें, एक दूसरे को इंसान समझकर आप रहना शुरू करें, बिकॉज ये इंसानों का समाज है ना। तो यही थॉट हमने जयंती के माध्यम से सामने लाया है। और ये मतलब ये इस मीडियम का रीच बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि हम अच्छा कुछ दे रहे हैं सोसाइटी को, या कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो वी हैव बीन, आई कैन से कि वी हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन वी मेड जयंती, because we wanted to give something positive to the society, some optimism to the society, and the feedback that we are getting from people, I think हम कुछ मायने में इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। one more thing, because sitting outside India, we saw that India, that's it. Nobody talks about कास्टिज्म विद इन द इंडिया, विद इन द बाउंड्रीज, और वो बहुत ज्यादा इस वक्त फैला हुआ है। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एवरीबडी, एवरी सिंगल कास्ट, लोअर कास्ट जो लोग हैं, हम हैं, आप हैं, और भी कई सारे जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, वो कास्टिज्म में फंसी हुई हैं, एंड दे आर डीलिंग विद एवरी डे in their personal life. आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में इस तरह की फिल्में क्या रोल अदा कर सकती हैं? जी, तो मुझे लगता है ये सिर्फ इंडिया के बाहर नहीं है, ये इंडिया में भी लोग कास्ट के ऊपर डिस्कस करने को तैयार नहीं होते हैं। दे सफर, मतलब ये कास्ट को लेके जो सफर और जो प्रॉब्लम फेस करते हैं डेली बेसिस पे, वो तो है, इसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन उस बात के ऊपर डिस्कस करने में, चर्चा करने में लोग अभी भी शर्माते हैं, घबराते हैं, या मुझे लगता है कि जानबूझकर नहीं करना चाहते। लेकिन ये ऐसे ही कुछ माध्यमों से हमें ये डिस्कशन ऑन रखना होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है
जब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो ही शायद हम उसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ सोच पाएंगे या कर पाएंगे। हम उसे छुपाते रहेंगे तो हम सिर्फ सफर करते रहेंगे, वी मे नॉट गो टू द सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली। पर जैसे हेमंत यहाँ है एंड आई एम श्योर कि ही हर्ड सो मेनी स्टोरीज अबाउट इट। इंडिया से बाहर अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो दे ब्लेम अस के तुम लोग जो हो इंडिया को बदनाम कर रहे हो। If we see from through this perspective or this chashma, what do you have to say? जी हाँ, मतलब मुझे भी लगता है कि जैसे लाइक आपने सुना होगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी बोला था कि जैसे लोग माइग्रेट होना चालू करेंगे, हिंदू लोग, जहाँ पे तुम जो भी कास्ट आप मानते हो उस चीज को, अगर आप इंडिया से बाहर जाए तो कोई भी देश में, तो आप वो चीज आप लेके जाओगे। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि लाइक अमेरिका में भी अभी बहुत सारे केसेस अभी उठ के आ रही हैं, लाइक सिस्को केस था, हार्वर्ड में भी एक स्टूडेंट अभी उठ के आया है, राइट, कि उनके यहाँ पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे अपने बच्चे पढ़ने आते हैं फ्रॉम द ऑपरेस क्लास, वेरी पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड फ्रॉम इंडिया से, तो उनका भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई उसकी बातचीत नहीं करता था, क्या इंडिया में नहीं करते तो पराये देश में तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसके कारण बट जैसे हमारे लोग जुड़ते गए, स्टूडेंट आते गए, अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ते गए, राइट, तो अभी हमारी भी कम्युनिटी अच्छी हुई है, तो दे हैव अ सपोर्ट हियर इवन दो देयर इमीडिएट रिलेटिव्स फैमिलीज आर नॉट हियर, राइट। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सुनते हैं एंड वी ट्राई टू हेल्प देम एंड वी ट्राई टू एजुकेट द पीपल। लाइक दिस इज लाइक यूएस में फॉर एग्जाम्पल जैसे रेशियल जस्टिस के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट एक्टिविज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे, उसी तरह कास्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, बिकॉज पीपल आर माइग्रेटिंग टू द यूएस एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटिंग अक्रॉस ऑल द ग्लोब फ्रॉम द इंडिया। और अगर वो कास्ट इंडिया में मानते हैं तो वो मेंटेलिटी वो आप वही भी लेके जाते हो और वही भी स्प्रेड करते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी thoughtful, like media as you said, right, it's a big impact. Like आप बोलने से, like आप पिक्चर से दिखाते हो तो definitely people can watch it again and again if they understand it and they want to, you know, imply it in your real life to their kids or to the next generations. I think that's a very impactful thing we have to showcase here in the US and it's a must have, I think. It is. ऋतुज, जब आप ये फिल्म कर रहे थे तो आपको लगा था कि कहीं ना कहीं मैं इस फिल्म में कुछ पॉजिटिव ऐसा जो बहुत पर्टिकुलर समाज से आ रहा है, एक बहुत पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहा है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि अच्छा और बुरा इंसान तो कोई भी हो सकता है किसी भी कम्युनिटी में और है सब जगह, लेकिन बुराई से अच्छाई की तरफ आने में जो एक मैसेज जा रहा है पॉजिटिव, उसकी आज कितनी जरूरत है? मैं कलाकार हूं तो उसी के हिसाब से मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत एक आइडियलिज्म, सो कॉल्ड आइडियलिज्म है फिल्मों में, वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड में, कि जो प्रोटोगनिस्ट होता है उसके साथ कुछ हालात होते हैं और उसके बाद फिर वो एज अ रिवेंज, एज अ प्रतिशोध हाथ में गन लेता है और एवरीवन अवेयर ऑफ इट कि एट द एंड ऑफ द डे वो उसको मारेगा एंटागनिस्ट को और वो संघर्ष करते हुए वो भी मर जाएगा और अदरवाइज हैप्पी एंडिंग होगी। तो ये एक सो कॉल्ड आइडियलिज्म है कि रेबेलियसनेस जो है गन से या फिर बुरी चीजों से दिखाया जाता है और अंत में उनका वो जीतते हैं, जबकि रियल लाइफ में देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं करता है। हम कभी डायरेक्टली बोल नहीं पाते या फिर अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाते और इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि अगर आपने गन की जगह हाथ में बुक्स रखे, किताबें रखे और इन महामानवों के विचार रखे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ की जो एंडिंग है वो हैप्पी ही रहेगी और आप भी सोशल इमेंसिफिकेशन के साथ फाइनेंशियल इमेंसिफिकेशन भी होगा और आप आजू बाजू के आपके लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थिंग थी जो एक्सेप्ट मुझे लगता है कि सोशल लेवल पे होनी ही थी, क्योंकि ऐसा किरदार कभी किसी ने नहीं देखा था कि सिर्फ और सिर्फ एकदम सो कॉल्ड फिजिबल ट्रांसफॉर्मेशन है कि और लोगों ने भी उन्हें इसी की वजह से लोगों को अच्छा लग रहा है कि जो
मैं जिनका किरदार कर रहा हूँ, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कभी किसी से डरते नहीं है और उनको पता भी नहीं होता कि उनका यूज हो रहा है, उन लोगों को भी ये इतना फिजिबल लग रहा है कि कितना इजी है यार। यानी अच्छा बनना या फिर अच्छे काम करना इतना इजी है। हमें बस किताबें पढ़ना है और सब कुछ समझना है। हम जिनको बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं या फिर फॉलो कर रहे हैं, बस उनके विचार समझना है, तो अपने आप हमें रास्ता मिल जाएगा। तो वो एक कोरिलेटिवनेस है यहाँ पे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जब आप ये फिल्म कर रहे थे तो इस सेट पर जो माहौल था वो कैसा था, जो आपको बहुत प्रोत्साहित कर रहा था या तो आपको बहुत डिमोरलाइज कर रहा था, या व्हाट वाज देयर? सेट पे तो बहुत ही अच्छा माहौल ही था। मैं तो कहूंगा कि बहुत हंसी खुशी का माहौल था और सभी आर्टिस्ट ने भी बहुत अपना 100% दिया है। डायरेक्टर सर का, हमारे शैलेश सर का एक होल्ड था पूरे इसमें। और एक अच्छी बात थी कि पूरे सेट पे उन्होंने कभी किसी पे बड़ी आवाज से बात नहीं की है और कुछ नहीं, तो हम एक हंसते खेलते वो एक शूट हुआ है हमारा। रही बात स्टोरी के बारे में, आप मुझे समझ रहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी स्टोरी थी तो फिर क्या उसका इम्पैक्ट था और कैसा लोग। तो इसके बारे में ऐसा है कि सर ने सिर्फ 2 या 3 लोग थे, उनको पूरी स्टोरी पता थी फिल्म की। और जिनके 2 सीन है, जिनके 3 सीन है, वो उनको जिस दिन वो सेट पे आ रहे थे उनको सिर्फ उनका ही सीन पता था और वही वो उनका किया गया। तो बहुत से लोगों को सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो। फिल्म देखते वक्त उनको लगा कि अरे ये भी था इसमें और ये भी था। मुझे तो लगा कि इतने ही लोग होंगे, इवन कास्ट भी नहीं पता थी लोगों को। तो वो इतना एक ऐसा एक क्या बोलते हैं, वो एक प्रोफर्मा रखा था सर ने। तो स्टोरी बहुत लोगों को पता नहीं थी। शूट भी बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल हुआ है, वो इसलिए कि जो भी पोस्ट प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम्स आते हैं बाद में, तो एक क्लीन कैनवास चाहिए होता है प्रोजेक्ट के लिए, तो उसकी वजह से ना फोटोज अलाउड थे। तो बहुत ही सिंपली और सोबरली बस जो शूट करना है वही हुआ है हर बार, और ऐसा ही शूट हुआ है। वंडरफुल वंडरफुल। शैलेश जी, आपने ऐसा क्यों किया जो ये कह रहे हैं? So it was not planned. मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम लोग जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वो सेम पेज पर रहे फिल्म को एग्जीक्यूट करते समय। बट ड्यूरिंग द प्री प्रोडक्शन जब मैंने कुछ क्रू को साइन किया, टेक्निकल क्रू था, और जब हमने एक्चुअल काम शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि कुछ लोगों को they were not comfortable with this content, maybe because they belong to the other communities and तो ये सब issues थे। तो मुझे वो समझ में आया कि पर्टिकुलर कुछ सीन या कुछ डायलॉग से ही लोगों को ये था कि ये लेंथी हो रहा है, इसको अभी कट करते हैं, इसको शूट नहीं करेंगे, एडिट में कट जाएगा, या इसको सेंसर पास ही नहीं करेगा। तो ये जब मैं कुछ क्रू से सुन रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये इतना आराम से नहीं जाने वाला है। सॉरी। तो आई देन चेंज द स्ट्रेटेजी, और फिर मैंने सोचा कि जिसका जितना रोल है या जिसे जितने दिन सेट पर रहना है उसे उतनी ही इंफॉर्मेशन रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी, सो दैट nobody should try to influence me while completing the film. And now when people are watching the cast and crew, so they are, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा ये ऐसा था। No, it's just being a organizer or event director of IIFB, मेरी टीम को भी आखिरी वीक तक नहीं पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, just because this is your role, so focus on your work, don't indulge here and there, and don't waste time, just do it. You have to do this, so this is your part, this is your baby, do it 100% on it. तो वो मैं भी करती हूँ। so मैं जैसे इन्होंने बताया मैं समझ गई कि शैलेश जी और मेरा काम करने का तरीका एक सही है। पर नो इज गुड थिंग। अमोल, आपको क्या लग रहा था कि ये जो कुछ चल रहा है लाइफ में, मतलब फिल्म सेट की जो लाइफ थी वो सही जा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और आपको क्या उम्मीदें थी इस फिल्म से? इस मूवी से हमारी कुछ उम्मीदें थी। राइट फ्रॉम डे वन वी हैड
set certain expectation for us. We knew that since हम लोग जब ये project के पीछे है, तो society is also expecting a standard output from us. You know, ये ऐसा देखा गया है for good or for bad. जब हमारे लोग movie बनाते हैं, तो somewhere the technical aspect is compromised big time. And just by looking at the movie, you know, somebody can make out कि ये किसने बनाया होगा. So हम चाहते थे कि जब ये टॉपिक पर मूवी बने तो टेक्निकली सुपीरियर बने, यू नो. So that was our first and the foremost expectation कि ये प्रोजेक्ट में we had to be technically superior on all grounds. So that was the part right from day one, and we are very happy that Shailesh has done justice to all the departments. You know, the camera that we used, the Arri Alexa camera, जो हिंदी मूवीज में बड़ी बड़ी मूवीज में यूज हो चुका है, बाहुबली जैसे मूवीज में कैमरा यूज हुआ है. इसमें जो म्यूजिक है वो मंगेश धाकड़े का है. तो मंगेश इज ऑल्सो ए ब्रांड इन बॉलीवुड. आर्टिकल 15, थप्पड़ ऐसे पिक्चर में उन्होंने म्यूजिक दिया है. इसका जो साउंड आप जब देखेंगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू अप्रिशिएट. इसका जो साउंड है 7.1 डिजिटल डॉल्बी है. तो ये ऑल दिस थिंग्स हैव एंश्योर्ड कि वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी. And then of course I am an accidental co-producer. I just believed on the message of the movie, and me and like many other co-producers, we just jumped in. So we are not professional producers per se, but we had certain expectations. So technical aspect was one. Second was come what may, we shouldn't compromise with the message. We shouldn't compromise with the creative aspect. We shouldn't compromise with what we want to communicate to the society through this movie. So that was the thing that we from the people behind the scene, we had expectation with the directors and the actors of this movie. And glad to say that when we were doing censor certification, Shailesh was extremely tense, because ये टॉपिक ही ऐसा है कि we are always इसका सेंसर सर्टिफिकेशन होगा नहीं होगा. तो करीब 5 लोग आए थे सेंसर बोर्ड से, and the moment they came out from the hall, they said that it's a brilliant movie and you should send it for state awards and national awards. Wonderful. So obviously communicating the message is one part, but at the same time not to hurt others, not to hurt others' emotion. तो हमारी लाइन को अगर हमको लंबा करना है तो दूसरी लाइन को छोटा करना हमेशा जरूरी नहीं. तो these were the things, and brilliantly executed by Shailesh ji, and nicely supported by the team in the back. Awesome. तो बहुत बड़ी बात आपने कही है शैलेश जी. Congratulations for making this such a beautiful movie, and can't wait to see it next week. Hemant, I'll be there. आप यहाँ स्क्रीनिंग हो रही है बॉस्टन में, आपके क्या वर्ड्स होंगे उसके लिए? क्या कहना चाहेंगे आप बॉस्टन ऑडियंस से? It was a very difficult film to make, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम इस प्रोजेक्ट के साथ खड़ी थी at the back end also. People like very strong people like Amol ji, and there are other 40-50 people जो बैक एंड में थे, और एक अच्छा टीम, ये क्रिएटिव टीम, तो उस वजह से हम ये कर पाए हैं. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि द फिल्म इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, और अब बॉस्टन में एक शो है, तो वी विल बी वेटिंग फॉर द रिव्यूज फ्रॉम द बॉस्टन स्टडी सर्कल कि उन्हें फिल्म कैसी लगी. और यस, वी आर वेरी हैप्पी कि हेमंत जी और उनकी टीम ये एफर्ट ले रही है फिल्म वहाँ स्क्रीन करने के लिए. हेमंत जी, थैंक यू फॉर दिस.
and thank you to you also. You give us the opportunity to interact before the screening, and yeah, thank you. थैंक यू सो मच. ऋतु, आप कुछ बॉस्टन ऑडियंस को कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कम्युनिटी से या फिर किसी भी चीजों से बिलोंग करते होंगे तो ये फिल्म देखने के बाद आप ह्यूमैनिटी लेके आएंगे बाहर, ये गारंटी है. तो आप जरूर ये फिल्म देखिए एंड फील द ह्यूमैनिटी आफ्टर वॉचिंग दिस. Absolutely, absolutely. Hemant, please tell us about screening, where, when, what time, everything. Yeah, so हम अभी we are screening this movie in Apple Cinemas in Cambridge, which is like a hometown for Harvard University and MIT, which is near Boston. And we are screening this movie on Sunday, December 12 at 3 p.m. Eastern Time. And we are hoping that we will see a lot of audiences. We already got a lot of RSVP because seats are limited. A lot of people are reaching out to us, but we thought that let's do this first time and then we'll see how it goes. And if there are more audiences, then probably we can do another show. Absolutely, absolutely. So I wish that Boston will be there, enjoy the movie, and think about it, how positivity will impact the generation, upcoming generation. It's not about today, it's about हमारे बाद भी चीज बाकी रहनी चाहिए, and that is only positivity जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं. तो प्लीज बॉस्टन, कम and watch the movie and give your feedback. Thank you so much for joining us. Razia Mashkoor signing off, India International Film Festival of Boston. Thank you. Thank you. Thank you.